Dear students, welcome back. Today we will study what are phenols, their general methods of preparation. What are phenols? Phenols are hydroxy derivatives of aromatic hydrocarbons in which OH is directly attached to benzene. This is phenol. हमने कहा aromatic hydrocarbon, लेकिन साथ में एक और बात बोली, OH should be directly attached to benzene. So if we talk of this, is it phenol? No, it is alcohol. Because OH is attached to side chain of aromatic hydrocarbon, whereas phenols are those in which OH is directly attached to benzene. They are derivatives of aromatic hydrocarbon, but OH should be directly attached to benzene ring. For example, this is aromatic hydrocarbon and OH attached here directly to benzene ring, so it is phenol. This is not phenol. Classifications. Phenols have been classified into monohydric, dihydric, and trihydric, as well as polyhydric phenols, depending upon number of OH groups directly attached to benzene. Monohydric phenol, dihydric phenol, trihydric phenol. More than 3 होंगे तो हम कह सकते हैं polyhydric phenol. This is the classification. Monohydric, dihydric, trihydric. And more than 3, it is polyhydric. Monohydric phenols, according to IUP system, nomenclature की बात कर रहे हैं अब. The simplest member of this family is called phenol. In general, name इनका है phenols, ऐसा लगाते. और जो simplest member of family है उसको कहते हैं phenol. This is phenol. All substituted phenols are named as derivative of phenol. जो बाकी वाले हैं मोनोहाइड्रिक की बात कर रहे हैं फिलहाल हम, इसके डेरिवेटिव माने जाएंगे, जैसे 2-methyl phenol, 1, 2 is phenol, so it is 2-methyl what? Phenol. इसको क्या बोलेंगे हम? 2-methyl phenol. इसको क्या बोलेंगे हम? What we will call it? 2-nitrophenol और orthonitrophenol. इस तरीके से. Next we have the dihydric phenols. Dihydric, trihydric. उनको भी देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर में. सिलेबस में हमारे मोनोहाइड्रिक ही हैं, but let us have some idea of what dihydric and trihydric phenols. अगर हम बात करें dihydric phenol की, we have 3 isomers of dihydric phenol: ortho, meta and para. How to name them? इनको नाम कैसे देना? How to name these? This is 1,2-dihydroxybenzene. This is 1,3-dihydroxy. They are named as derivatives of benzene. इनको IUP सिस्टम में नेमिंग देते as derivatives of benzene. इनको फिनोल नहीं बोलते, dihydric derivative. So they will be named as derivatives of benzene. That is 1,2-dihydroxybenzene, 1,3-dihydroxybenzene, 1,2,3,4 1,4-dihydroxybenzene. But they have special names also. 1,2 derivative is also called catechol. 1,3 is called as resorcinol. They are more commonly known by these names. इनके IUPAC नेम से इनको हम कम जानते, इनके कॉमन नेम से इनको हम ज्यादा जानते हैं. याद रखें, बुक्स में आपको यही नाम मिलेंगे. इसको 1,2-dihydroxybenzene ना लिख के catechol लिखा गया होगा, इसको क्यूनॉल लिखा गया होगा. However, they are better known by their tribal names. अब बात आती है बच्चे ट्राइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव. इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर का तरीका भी सेम है, सेम. दैट इज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन. 1, 2, 3 trihydroxybenzene. Its name will be 1, 2, 3 trihydroxybenzene.
बेंजीन, इट इज इट्स नेम। अब बात आती है व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम, दिस इज आईयूपीएसी सॉरी। अब बात आती है कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम, वो क्या है? इसको जो 1 2 3 वाला डेरिवेटिव है इसको पायरोगैलॉल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पायरोगैलॉल। और एक डेरिवेटिव इसका ये है, देखें बच्चे 1 2 3 दिया ना मैंने पहले, मैं इधर से ट्राई करके लिखा 1 2 3, ये 3 वाला उठा के यहाँ ले आए। अब ये हो गया 1 2 4 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन इसका एक पुराना नाम भी है, ऐतिहासिक नाम कह सकते हैं आप। इसको आपने क्या बोला, अगर आप इसको भूल जाए तो आपने बोला इसको क्यूनॉल, सो इट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। इसकी खासियत क्या है, जहां मर्जी OH लगाओ, जहां मर्जी कंपाउंड सेम रहेगा। कौन सा OH जो मैंने बाहर एक्सक्लूड किया, यहां लगाओ तब भी सेम रहेगा। देखिए 1 2 3 4, अभी 1 2 4 ही रहा। और एक तीसरा है, थर्ड वन 1 3 5, इसको फ्लोरोग्लूसिनॉल कहते हैं। तो इनके जो ट्राइबल्स नेम है वो क्या है, पायरोगैलॉल, हाइड्रोक्सीक्यूनॉल और फ्लोरोग्लूसिनॉल। फ्लोरोग्लूसिनॉल किसको कहते हैं, 1 2 3 4 5, दैट इज 1 3 5। इफ a function group of higher priority is present, ये भी याद रखिए, अगर OH से ज्यादा प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, then they are not called phenols, then they are named as derivative of the more important functional group name, that is जैसे इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड, जो होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, in that case it will be treated as substituent हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में CH2 is more important than OH। ये भी याद रखिए कि अगर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप आ जाए, उस केस में हम इनको डेरिवेटिव ऑफ द पेरेंट कंपाउंड विद इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप जो है उसके हिसाब से नेमिंग देते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो सिमिलर टू एल्कोहल है, बी शेप। अल्कोहल का सिमिलर टू वाटर, बॉन्ड एंगल में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता क्योंकि अब फिनाइल ग्रुप जो है बल्कि ग्रुप है थोड़ा, बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन पे फर्क पड़ेगा। बॉन्ड एंगल कैन वेरी, बट इन जनरल द structure is similar to that of alcohol, that is it has a B shaped structure like that of alcohol, oxygen carrying negative and the other ends carrying partial positive. As a result phenols are also polar in nature. For example जो phenol है इसकी डाइपोल मूवमेंट 1.54 d है, is less than methanol, methanol से कम है, अल्कोहल से कम है, but even then we can say it has dipole movement। इसकी डाइपोल मूवमेंट होने का कारण क्या है, बिकॉज ऑफ द लेस पोलर नेचर ऑफ फिनोल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ बेंजीन, क्योंकि बेंजीन इसके नेगेटिव चार्ज को कुछ हद तक न्यूट्रलाइज कर रही है, रेजोनेंस से भी कर रही है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, रेजोनेंस भी है। इट हैज लेस पोलैरिटी देन मिथेनॉल, मिथेनॉल से इसकी पोलैरिटी कम है। जो हम डाइपोल मूवमेंट देखते कैसे देखते, डाइपोल मूवमेंट होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, हायर द चार्ज हायर द पोलैरिटी हायर द डाइपोल मूवमेंट। चार्ज कम हो रहा है तो मतलब डाइपोल मूवमेंट भी कम हो, डिस्टेंस भी कम हो रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड फैक्टर आ रहा है तो डाइपोल मूवमेंट कम हो, तो दे हैव लेस डाइपोल मूवमेंट देन मिथेनॉल। So this was general discussion regarding what, regarding phenol। Now we will move on to प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स। प्रॉपर्टीज प्रेपरेशन दोनों देखेंगे लेकिन पहले प्रेपरेशन देखेंगे। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पहले सल्फोनिक एसिड होता क्या है, SO3H इज कॉल्ड सल्फोनिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ये बच्चे सोडियम सॉल्ट, इसका सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट SO3Na, इसको आपने ट्रीट करना NaOH के साथ, यूज करना बेसिकली स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी, फ्यूजन करनी 573 केल्विन टेम्परेचर,
Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। रिएक्शन तो आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब में क्या होना। एक तो अपने दिमाग में आपने रखना कि मुझे फिनोल बनाना है, तो फिनोल ऐसे ही बन सकता है, बनना भी चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। आपको क्या मिल जाएगा, फिनोल OH प्लस क्या मिलेगा, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। SO3 नेगेटिव ले लेगा, Na पॉजिटिव। दिस वाज रिएक्शन विद NaOH। हाँ, एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गया आपको कि जब भी हम बेस का इस्तेमाल करें, बेस, फिनोल्स और एसिडिक इन नेचर, पहले वो बता दूंगा। फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर, स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल। अल्कोहल और फिनोल की एसिडिक नेचर का अंतर देखिए। अल्कोहल रिएक्ट विद मेटल बट नॉट विद NaOH। अल्कोहल्स Na के साथ रिएक्ट करते, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सोडामाइड से भी रिएक्ट करते, NaOH से नहीं करते। इट मीन अल्कोहल्स आर weaker acids than phenol. Phenol react करता है NaOH से, it react with NaOH. तो phenols are stronger acids than what alcohol. बाद में समझाऊंगा भी मैं इस बात को कि why phenols are stronger acids than alcohol. क्वेश्चन भी हम स्टडी करेंगे। तो चूंकि phenols are stronger acids than what alcohol, they react with NaOH. NaOH हमने डाला हुआ है, इसका मतलब जैसे ही फिनोल बनेगा NaOH से रिएक्ट कर जाएगा। टू मॉलिक्यूल ऑफ इट गेट कंज्यूम्ड। एक मॉलिक्यूल ने इसको बनाया, दूसरे मॉलिक्यूल ने इसका सॉल्ट बनाया, प्लस वाटर बनेगा। तीन चीजें बनेगी बच्चे इस रिएक्शन में। वन सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल एंड सेकंड क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड, और थर्ड क्या बनेगा, वाटर। अब आप कहते हैं मुझे तो फिनोल चाहिए, तो फिर मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड डालो, से HCl। HCl स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल, तो ये फिनोल के सॉल्ट को तोड़ देगा और खुद सॉल्ट बना लेगा, NaCl। NaCl H, you get the phenol as final। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पहले क्या बनाया है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल। ये यहाँ से मिसप्रिंट हुआ है, मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ आपको के लिए, वो है। फिर HCl डाला, फिर बनाया, फिर NaOH के दो मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, माइनस सोडियम सल्फाइड माइनस वाटर, ये मैंने लिखे हैं क्योंकि रिएक्शन से हमने रिएक्शन चलाया है आगे, रिएक्शन से रिएक्शन। तो फिर आपने जो साइड प्रोडक्ट्स हैं, जो अनवांटेड प्रोडक्ट है, एरो पे लिखनी माइंड्स तक। टू ब्रेक वीक एसिड सॉल्ट वी एड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये अपने दिमाग में कंसेप्ट बना के रखिए। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज फ्रॉम डायोनियम सॉल्ट्स। डायोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, बेंजीन डायोनियम क्लोराइड, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सिंपली आपने क्या करना, वाटर के साथ इसको हीट करना, एसिडिक मीडियम देके, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। इट गिव्स, आपको दिख रहा होगा कि दिस बॉन्ड इज हाईली पोलर, हाईली अंडर स्ट्रेन, N के ऊपर पॉजिटिव, इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अंडरस्टूड है, वाटर को मौका लगेगा तो वो इस पे अटैक करेगा। व्हाट वी गेट प्लस क्या बढ़ना चाहिए, N ट्रिपल बॉन्ड एंड दैट इज नाइट्रोजन, प्लस क्या बढ़ना चाहिए, H और Cl दैट इज HCl। बाय ट्रीटिंग बेंजीन डायोनियम क्लोराइड विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2, माइल्ड हीटिंग करनी इसकी। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज by decarboxylation of सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप किसी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड को डीकार्बोक्सिलेट करें, वो किससे करें बच्चे, सोडा लाइम से। सोडा लाइम होती है मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों को डाल के हीट करें। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड व्हेन हीटेड विद सोडा लाइम इट लूज सोडियम कार्बोनेट। ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, किसी भी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड को ले, ये कुछ चीजें होती हैं कंसेप्ट बेस में, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए। इन दिस केस व्हाट यू गेट अल्केन, प्लस क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। क्योंकि हमें फिनोल बनाना है, तो हमने क्या किया, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड लिया जिसमें फिनोल ऑलरेडी है, ये OH ऑलरेडी लगा हुआ है। हमने इसको हीट किया सोडा लाइम से, फ्यूजन किया, स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया, कैल्शियम ऑक्साइड डाल, तो देयर इज लॉस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, H यहाँ अटैच हो गया, यहाँ बॉन्ड, एंड वी गॉट फिनोल। H यहाँ आ गया, तो आप शो करो नहीं करो एक ही बात है, अंडरस्टूड है, यहाँ सारे H लग गए, यहाँ शो नहीं कर रहे हैं हम, तो वी गॉट फिनोल। प्लस क्या बनेगा बच्चे, सोडियम कार्बोनेट। तो बाय हीटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड दैट इज सोडियम सैलिसिलेट, इससे हीट करना सोडा लाइम से, वी गॉट सोडियम कार्बोनेट, वाटर और
एक चीज यहाँ भी मैं लिखना भूल गया, फिर से मैं रिएक्शन को रिपीट करूँ और बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने डाला NaOH और डाला सोडा लाइम, लाइम सॉल्ट, सोडा लाइम। आई गॉट फिनोल, इसने बनाया सोडियम कार्बोनेट। लेकिन मत भूलें बच्चे, जो मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूँ कि फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर टू प्रेजेंस ऑफ बेस। एक ने तो इसको फिनोल में कन्वर्ट कर देना, लेकिन एक मॉलिक्यूल और इसका रिएक्ट कर जाना इससे और बना देना इसका सॉल्ट। क्या बन जाएगा बच्चे? सॉल्ट। जब सॉल्ट बनेगा फिनोल का तो माइनस वाटर भी हो। ये देखिए ना ऐसे, फिनोल है प्लस NaOH, लॉस ऑफ वाटर हो, तो ये बनेगा ON। सो वी गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल को अगर आप फिनोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि टू ब्रेक द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एड स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl डाला, वी गॉट फिनोल। हमें क्या मिल गया? नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम ग्रिग्नॉड रीजेंट। ग्रिग्नॉड रीजेंट से कैसे बनाएंगे बच्चे? हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम ग्रिग्नॉड रीजेंट? होता क्या, अंडरस्टूड है, आपने फिनोल बनाना है तो आपको एरोमेटिक ग्रिग्नॉड रीजेंट लेना, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऑक्सीडेशन करनी इसकी, एरियल ऑक्सीडेशन एयर से इन प्रेजेंस ऑफ डाइइथाइल सॉल्ट। जब भी ग्रिग्नॉड रीजेंट का इस्तेमाल करो ड्राई ईथ ही यूज हो एज सॉल्ट, बिकॉज ग्रिग्नॉड रीजेंट इज हाईली रिएक्टिव विद वाटर, कैन कॉज एक्सप्लोजन। आपको क्या मिलेगा बच्चे? OMgBr। अंडरस्टूड है, ऑक्सीजन पोलर बॉन्ड में ही एंटर करेगा एंड देन हाइड्रोलाइज इट विद एसिडिक मीडियम। इसको हाइड्रोलाइज कर दो किसके साथ? एसिडिक मीडियम। O नेगेटिव का ले लेगा H पॉजिटिव एंड व्हाट वी गेट फिनोल। हमें क्या मिल जाएगा? फिनोल। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, O नेगेटिव Mg पॉजिटिव, O नेगेटिव का ले लेगा H पॉजिटिव एंड वी गेट ये बच्चे। उसके बाद है कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स, कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स की कमर्शियल प्रेपरेशन। कमर्शियल प्रेपरेशन की लार्ज स्केल प्रेपरेशन, लार्ज स्केल पे जब बनाना, इंडस्ट्रीज में बनाना। फर्स्ट मेथड इज कमर्शियल में बाय ट्रीटिंग विद क्लोरोबेंजीन। कंडीशन ड्रास्टिक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे ही आप इसको कर पाएंगे, लेबोरेटरी में तो करना मुश्किल होगा। 623 केल्विन टेम्परेचर चाहिए बच्चे, देखिए 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, 300 चाहिए। अब आप समझ सकते हैं क्या होना। OH नेगेटिव ने अटैक करना, यहाँ पोलर बॉन्ड पे क्लोरीन को बाहर निकालना। लेकिन क्या फिनोल बनना या उसका सॉल्ट बनना? सॉल्ट बनना। वाई सॉल्ट? सॉल्ट क्यों बनना? बिकॉज फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब NaOH का एक मॉलिक्यूल यूज नहीं होना, दो। एक ने NaCl बनाना बच्चे, फिनोल बन गया। फिर एक ने इसका सॉल्ट बनाना तो माइनस वाटर भी हुआ। लेकिन आपको तो फिनोल चाहिए, आप कहेंगे HCl डालिए, मैंने बताया हुआ आपको। सो वी गेट फिनोल माइनस NaCl। दिस इज हाउ। सो बाय ट्रीटिंग क्लोरोबेंजीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड वी गेट सोडियम फिनोक्साइड, एसिडिफाई करिए वी गेट द फिनोल। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होती है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ये आपको एग्जाम में आ सकता। आइसोप्रोपाइल बेंजीन ये होता है क्यूमीन। इसकी करिए ऑक्सीडेशन एट 368 केल्विन, लोअर लिमिट ऑफ टेम्परेचर। आपको मिल जाएगा इसका परोक्साइड। यू गेट द परोक्साइड ऑफ व्हाट? क्यूमीन। ऐसे मतलब ऑक्सीजन का पूरा मॉलिक्यूल इस बॉन्ड में एंटर कर जाएगा, इस बॉन्ड। वी गेट परोक्साइड। परोक्साइड्स आर अनस्टेबल, परोक्साइड्स अनस्टेबल होते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड रिपल्शन करता, लोन पेयर पास पास है। ऑक्सीजन बॉन्ड आपको पता है छोटा होता है, दो दो लोन पेयर है। इसी वजह से मैं आपको रेफरेंस दे दूं, फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज हाईली अनस्टेबल। बेशक इसका बॉन्ड बहुत छोटा है, स्मॉल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट ड्यू टू रिपल्शन गिवन बाय दीस थ्री लोन पेयर्स दिस बॉन्ड बिकम वीक। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात अलग है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे बच्चे सिंगल बॉन्ड है, इट मेक इट अनस्टेबल, ये टूट जाता। लेकिन एसिडिक मीडियम आपको देना पड़ेगा, जब ये टूटता तो बच्चे ये साथ साथ में इसको भी तोड़ता, और आपको क्या मिलता बच्चे? फिनोल साथ में एसिड प्लस एसिड। एक चीज नोट रखें कि जैसे ये बॉन्ड टूटा यहाँ से, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम हो रहा है,
तो इसने इसका बॉन्ड तोड़ दिया। आप एक बात मेरे से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो हम ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं वो हम इसी बॉन्ड पे क्यों दिखा रहे हैं? व्हाई वी आर शोइंग ऑक्सीडेशन ऑन दिस बॉन्ड? और भी तो CH बॉन्ड है, ऑक्सीजन इसी पे एंटर क्यों किया? तो उसका एक रीजन है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच है ड्यू टू प्लस साइड इफेक्ट ऑफ दीस टू मिथाइल। जब हम इसको ऑक्सीजन से ट्रीट किए, वी गॉट द पेरोक्साइड, ऑक्सीजन ने इसको क्या किया? ऑक्सीडाइज कर दिया ऐसे वो, और फिर हमने इसको एसिडिक मीडियम देके तोड़ दिया एंड वी गॉट द। ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको बच्चे जरूर याद करें। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम बेंजीन, रॉशिग्स मेथड। बेंजीन से बनाना है, बेंजीन से बनाना है बच्चे। करना क्या है? बेंजीन को ट्रीट करना है HCl से इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड एज कैटालिस्ट। मतलब क्लोरोबेंजीन ना यूज करके हमने सीधा यूज करना बेंजीन। HCl और ऑक्सीजन, रॉशिग्स मेथड, 500 केल्विन टेम्परेचर, व्हेन वी गेट द, हमें क्या मिलेगा बच्चे? क्लोरोबेंजीन। लॉस ऑफ वाटर 1/2 कर सकते हैं आप इसको, माइनस वाटर, हमें क्या मिल गया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को फिर ये रॉशिग ने किया अपने हिसाब से, हालांकि आपने देखा NaOH से भी आप इसको कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये साइंटिस्ट के नाम से जुड़ा हुआ मेथड है तो आप इसमें रिएक्टेंट को अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको रॉशिग्स मेथड आए तो फिर आपने ऐसे ही लिखना है। तो रॉशिग ने अपने हिसाब से किया। ऐसे आप देखें यहाँ पे हमने यही मेथड क्लोरोबेंजीन से हमने यहाँ किया, स्टार्टिंग में ये किया, यहीं पे है ये देखिए बच्चे, ये देखिए NaOH से ट्रीट कर, इसको डाउज प्रोसेस कहते हैं। ये अलग साइंटिस्ट ने किया, ये अलग साइंटिस्ट ने किया। इसने इसको कैसे किया? इसने वाटर से ट्रीट किया, सिलिका, और 800 केल्विन टेम्परेचर। इसमें कितना टेम्परेचर है? 623 केल्विन टेम्परेचर। इसमें कैटलिस्ट भी यूज कर रहा है वो सिलिका। तो ये फिर रिएक्शन तो वैसे ही होना। इस रिएक्शन का एक फायदा है कि इसमें सोडियम सॉल्ट नहीं बनेगा, सिंपली क्या बनेगा बच्चे? फिनोल एंड HCl। क्योंकि इसमें NaOH का इस्तेमाल ना करके उसने वाटर का इस्तेमाल किया। इंस्टेड ऑफ यूजिंग NaOH ही यूज्ड वाटर, तो इसलिए सीधा फिनोल बना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। लेट अस सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। Physical state and smell. Phenols are colorless solids or liquids. They have characteristic phenolic odor. अब फिनोल सूंघेंगे तो ही पता चलेगा कैसा आउटर होता है फिनोलिक। फिनोल्स आर स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, कम सॉल्युबल होते हैं, स्प्रैंगली कम सॉल्युबल। दिस इज बिकॉज ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन। बेशक ये पोलर है लेकिन हाइड्रोकार्बन पार्ट इसमें बहुत बड़ा है। पोलर तो हाइड्रोबार्ड भी बना सकते हैं पर फिर भी इनकी सॉल्युबिलिटी कम है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो वाटर रिपेलिंग है। फिनोल्स आर सॉल्युबल इन अल्कोहल्स एंड ईथर्स, क्योंकि अल्कोहल में भी हाइड्रोकार्बन पार्ट है, लाइक डिजॉल्व, पोलर भी है हाइड्रोकार्बन भी है। वाटर में सिर्फ पोलर है, हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है। बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फिनोल्स आर हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। समझ सकते हैं आप, फिनोल्स का बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के प्योर हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक फिनोल का मॉलिक्यूल दूसरे फिनोल के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट इज, इसका H पॉजिटिव है ना, दूसरे फिनोल के O नेगेटिव से क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बच्चे, सो दिस वाज ऑल अबाउट preparation and physical properties of phenols. In the next video lecture we will study the chemical properties of phenol. Thank you very much. Hope आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस इज मस्ट, practice is required. It is like mathematics, organic chemistry. Unless you do the practice with your hands, you cannot do the organic chemistry directly in the examination.